Good morning, everyone. Today we are starting with our new topic, and that is supervision. Supervision includes commanding, guiding, plus controlling. Supervision means to inspect and to look over the employees which are working in your organization. Supervision is the second important factor of direction. In supervision, the manager look after the functions of the subordinates and decide whether all work being done according to pre-planning or not. The supervision also explain the orders and instructions received from high officials. The supervision also solve the problem of employee maintain their moral on director level. The operative direction of supervising manager is very necessary in fulfilling the objectives of the institution. Here, the meaning of supervision. Supervision is a combination of two words, super and then vision. Super means best and vision means to view or to inspect. Here, it shows or it to have a good eye on subordinate. Thus, in supervision, it is supervised whether the work is running according to the instructions and the employees are also directed for the same. The purpose of supervision is to achieve the best result utilizing human talent and available physical resources skillfully. देखिए सुपरविजन के बारे में यही कहा गया है कि सुपरविजन में तीन चीज़ें शामिल होती है। एक होता है कमांडिंग, दूसरा गाइडिंग और तीसरा कंट्रोलिंग। सुपरविजन के बारे में बोला गया है कि सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें देखा जाता है कि जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे एम्प्लॉयज़ को वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुपरविजन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सुपर एंड विजन। सुपर का मतलब होता है बेस्ट और विजन का मतलब होता है व्यू या इंस्पेक्ट। जो भी व्यक्ति काम करता है आपके यहाँ आप उसे देखते हैं, उसे जांचते हैं, परखते हैं। अगर उसको कोई काम नहीं आ रहा है तो आप उसे गाइड करेंगे, कमांड देंगे और फिर उसका जो वर्क है उसे कंट्रोल करने की अलग अलग तरीके से कोशिश की जाती है ताकि वो किसी भी गलती को ना करे। उसके बाद है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेज दैट इट नीडेड एट ऑल लेवल of management such as top level, middle level and lower level. Supervision is the second important factor of direction. Supervision is the second important factor of direction. It is a continuous process. It is minuously needed and needed at every time in the process of management. Supervision includes guidance at every level. Supervision में देखिए जो guidance रहता है वो शामिल रहता है। In supervision the use of resources such as human resources and physical resources are done and it must be see that whatever the resources you are using it must be used in the best way. सुपरविजन में देखा जाता है कि जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं उनका जो वे है, जो तरीका है वो बेस्ट वे में आप उसे यूज़ करें। ठीक है, सुपरविजन तो रहता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है लेबर से और सुपरविजन में गाइडेंस जो है वो हमेशा ही शामिल रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सुपरविजन में तीन चीज़ें शामिल होती हैं, कमांडिंग, गाइडिंग एंड देन कंट्रोलिंग। उसके बाद देखिए टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। सेकेंड पॉइंट इज फ्रेंडली रिलेशन विथ एम्प्लॉयज। इन सुपरविजन द वर्क ऑफ द सुपरवाइजर मेक फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ एम्प्लॉयज। ड्यू टू दिस एम्प्लॉय प्रीफर द वर्ड्स ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर इज द गाइड ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए बुक के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ, काफ़ी ईजी पॉइंट्स है और उसमें बोला गया कि सुपरविजन किया जाता है और सुपरवाइजर जो रहता है उसके एम्प्लॉयज से काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन होते हैं और उसमें एक लिमिटेशन होती है उस रिलेशन में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो सुपरवाइजर की जो बात है वो एम्प्लॉय मानते हैं और वो गाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोटिवेशन। सुपरवाइजर क्या करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन द इंस्टीट्यूशन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। द नेक्स्ट इज ईजी एंड immediate communication. There is a direct communication between employees and the supervisor. The supervisor sends them to higher authorities if the subordinate is having any problem. Thus in supervision there is a immediate communication. देखिए जो भी एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती है, जो भी सजेशन होते हैं वो डायरेक्ट सुपरवाइज़र को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुपरवाइज़र है उसमें और जो एम्प्लॉय है उनमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, वो सीधे बातचीत करते हैं, किसी भी तरह की कोई रुकावटें नहीं होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि परमिशन लेके जाना है। जो भी सुपरवाइज़र होता है वो उसे एक हेल्पर मानते हैं और उससे कोई भी अपने मन की बात कह सकते हैं और सुपरवाइज़र जो रहता है वो हायर अथॉरिटी तक एम्प्लॉयज़ की बात को पहुंचा देता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज मेंटेनिंग डिसिप्लिन।
Discipline makes the goal easy. Then the supervision make the discipline between the employees. With the help of supervision, the discipline is maintained with the employees or the organization. सुपरविजन की हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन रहता है. फिर है हेल्पफुल इन इंटरनल यूनिटी. द सुपरवाइजर इस्टेब्लिश द म्यूचुअल यूनिटी अमंग द एम्प्लॉयज बाय टू हिज विजडम एंड क्लेवरनेस. दिस म्यूचुअल यूनिटी हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन. देखिए, जो सुपरवाइजर रहता है वो हर एम्प्लॉयज़ में जो एकता है ना, उसे बना के रखता है. ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ आपस में एक रहेंगे तो वो एक दूसरे की हेल्प करके और किसी भी काम को करने की कोशिश करेंगे. अगर उनमें डिस्प्यूट्स होंगे तो हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका काम ना हो और मेरा काम जल्दी हो. नेक्स्ट इज स्पीड इन द वर्क. देयर इज ए स्पीड इन वर्क टू कंटिन्यू सुपरविजन. द एम्प्लॉयज़ वर्क कॉशियसली. देखिए, जो स्पीड रहती है, हर व्यक्ति को काम एक अपनी स्पीड से करना रहता है. एक ना, स्पीड का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है. ठीक है, स्पीड का मतलब ये है कि ज़्यादा धीरे भी नहीं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम होता है. और सुपरविजन की मदद से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय रहते हैं वो ध्यानपूर्वक किसी काम को करते हैं. ठीक है, तो ये थे फंक्शंस ऑफ सुपरविजन. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर. देखिए, अब सुपरवाइजर के क्या फंक्शन होते हैं. सुपरवाइजर का पहला फंक्शन है प्लानिंग द वर्क. द सुपरवाइजर मेक द डेली एंड वीकली प्लानिंग ऑफिस डिपार्टमेंट. जो सुपरवाइजर रहता है वो डेली और वीकली प्लानिंग करके रखता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेट टू सबॉर्डिनेट. अभी मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन की मदद से जो काम रहता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है. और जो सुपरवाइज़र रहता है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है ताकि हमें गोल जल्दी मिल जाए. उसके बाद है ट्रेनिंग एंड गाइडेंस. मैंने ये भी पॉइंट आपको बताया कि द सुपरवाइज़र ट्रेन्स एंड गाइड द एम्प्लॉयज़ टू गेट द रिजल्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. द नेक्स्ट इज सेफ्टी. द सुपरवाइज़र डज द वर्क of keeping security in his department so that the accidents could be checked. देखिए, सेफ्टी मेंटेन की जा सकती है. अगर सुपरवाइज़र है तो वो पूरे देख रेख करके काम करता है ताकि जो एक्सीडेंट रहते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है. उसके बाद है अचीविंग द गोल्स. द गोल्स आर डिसाइडेड बाय द एंटरप्राइज आर टू बी अचीव बाय सुपरवाइजर इटसेल्फ. फॉर दिस ही कंट्रोल ह्यूमन मटेरियल एंड सुटेबल यूज ऑफ मशीन. हर चीज़ को अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे ना तो आपको गोल जल्दी ही अचीव हो जाएगा. पर अगर आप एंटरप्राइज के जो भी आपके फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमन है, मटेरियल है, मशीन्स है, ये सब चीज़ें अगर आपको दी गई हैं और आप प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई भी गोल अचीव टाइम पे नहीं होने वाला है. और अगर आपको गोल टाइम पे अचीव नहीं होगा ना तो वो गोल मीनिंगलेस हो जाता है अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अवेलेबल होता है. ठीक है, तो ये थे आपके टॉपिक्स अबाउट सुपरविजन. एंड you can also read this difference carefully and ask me if you are having any doubts. Okay, thank you.